ज्यादा पता नहीं है। ओके। यस। यस। ओके, सो लुक्स लाइक सबको थोड़ा आइडिया है। लुक्स लाइक एवरीबडी हैज एन आइडिया ऑफ न्यूरोपैथी। तो ये जो सेशन रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, and this session will be in Hindi and English. We are just waiting for everybody to join and then we'll start. Nerve damage. Right. Correct. Okay, no problem if you do not know. कोई बात नहीं अगर आपको नहीं पता है. We will be telling you about it. बहुत लोग मुझे कुछ खाता, like I can see so many people of you eating something. Can you tell me what is for breakfast today? Tingling and numbness in the lower extremities. Oh my god, that's such an accurate answer. Very good. Ragi ball. Sir, ragi in for breakfast. Ragi will increase your sugar levels, sir. I think if you added more fiber and proteins before that, it will help you Yeah. in bringing the drop. So if you just see every day, right, I'm sharing some pictures, some more options that how you can bring a drop in your blood sugar levels. We are doing another session on glycemic response next week in Hindi and English. Today it is there in Telugu. But yes, it helps you in understanding that how the sequence, the different ingredients can make a difference in the glycemic response, means how the body will release the glucose or how the body will increase the blood sugar levels can be changed, and it's completely in your hand. If you just take a small step where you are just having the proteins and the fiber before the meals, having it in more quantity, it reduces the glycemic load and help you in reducing your blood sugar spikes also. So very few changes you have to make, and then you can enjoy whatever you like. I know it's Sunday, we feel like having something really healthy, traditional. Ragi ball is really yummy, and with lot of sambar, if you're taking one ragi ball and you can add one bowl of sprouted salad before that, it would be helpful in reducing and blunting the spike. So it's not that you cannot enjoy your traditional food, it's about how you can have it. Then again, very very important to check your pre and the post meal reading. One day you just have the ragi bowl, how you're having, and check the post meal reading to understand what are the numbers. And next day, try to have it with the meal sequencing, having sprouted salad, or you can have the sambar one katori first, and salad, and then you can try the ragi bowl with the sambar. I'm sure that will give you lesser spike. So you try, you check, you experiment. The more you experiment, the more you get to know about the sugar levels, the more you will be able to master it. So that's something that I want you all to develop, the habit of analyzing the food and its glucose response, right? I think we have good amount of people, like Shruti, let's start with the session. It's a very important Okay. topic today about the neuropathy. We have not discussed this earlier, and I'm sure you would love to know that what all changes you have to make to control all these neuropathic issues. Okay. So a very good morning to everybody One present here. minute, record the session. You are already recording? Yes, yes. Okay, okay, perfect. A very good morning to everybody present here. सबको good morning मेरी तरफ से। मेरा नाम श्रुति है, my name is श्रुति, और मैं ये सेशन हिंदी और इंग्लिश में लेने वाली हूँ। I'm going to take this session in both Hindi and English. So let's start. Let me share my screen. So let's talk about न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी के बारे में बात करते हैं। सो पहले, बिफोर वी टॉक अबाउट न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी के बात करने के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू आस्क सम थिंग्स, सो इट वुड बी रियली नाइस इफ यू कैन इंटरैक्ट एंड आंसर these questions. So answer in yes or no. Do you often feel tingling, burning or numbness in your feet or toes? क्या आपको ज्यादातर कोई टाइप का टिंगलिंग, जलन या आपके पैर सुन ऐसे फील होते हैं? क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? इफ यस,
Type a yes in the chat. Yes. Okay, I see so many yes. No. Okay. Next question is, do your feet do you feel does your feet feel unusually cold or hot compared to the rest of your body? क्या आपके पैर जरूरत से ज्यादा ठंडे या गर्म होते हैं आपके बाकी बॉडी पार्ट से कंपेयर करें तो? लाइटली कोल्डर? नो, नो। ओके, ग्रेट। ठीक है। And have you ever had cuts or blisters that you didn't notice until later? क्या आपके पैर में कभी ऐसी चोट आई है या कट आया है जो आपने नोटिस ही नहीं किया है? जब जब तक मतलब बाद में अगर आप ऐसे ही अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एक कट है, बट अदरवाइज यू हैव नॉट नोटिस्ड इट। ऐसा कभी हुआ है? नो, नो। ओके। यस, योगेश सर। ठीक है। नो कट्स। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। तो डू यू समटाइम्स फील लाइक यू वेयरिंग सॉक्स व्हेन यू आर बेयरफुट? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने सॉक्स पहने हुए हैं, इवन अगर आपने कोई सॉक्स नहीं पहना है, आप बेयरफुट है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है सॉक्स पहना हुआ है? नो। ओके। नेवर। यस, sometimes. Okay. And do you have pain in your feet at night or when resting? क्या आपके पैर में दर्द होता है जब आप रात को सो रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं? ऐसा होता है ज्यादातर? यस, समटाइम्स। ओके, तो आई थिंक ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को थोड़ी थोड़ी सिम्टम्स हो रही है, राइट? सो दिस सेशन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज some of you are having most of the symptoms, some of you are having these sometimes. So we need to discuss about neuropathy. So ये मैटर क्यों करता है? Why is it important for us to talk about neuropathy? So firstly, high blood sugar damages our nerves. तो आप एक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ वायर। ठीक है, हम एक वायर का एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोचिए कि ये जो वायर है ये मेरी टीवी को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, ये मेरी टीवी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। अभी इस वायर में जंग लग गया तो क्या होगा? This wire will not be able to pass electricity through it. So the example I'm giving is a wire, and let's say the wire has a rust in it. So because of the rust, what will happen? There will be no passage of electricity. This is exactly what is happening in our body. ठीक है? So what is happening in our body? हमारे बॉडी में ये हो रहा है कि हाई शुगर के वजह से हमारी जो नसें हैं, हमारी नसें कैसे चलती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ गर्म है, ठीक है, यहाँ पे कुछ गर्म है, मैं मुझे अपना हाथ यहाँ पे नहीं डालना है, तो मेरी ब्रेन मेरी नसों तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल डालेगी कि इसको टच मत करो। ठीक है, तो इसको ये क्योंकि मेरी वायरें सही से चल रही है। बट जब आपकी शुगर्स हाई होती है, क्या होता है? आपकी वायर में जंग लग जाता है और आपकी जो ब्रेन है वो नर्व्स तक प्रॉपरली कोई भी सिग्नल नहीं भेज पाती है। इसीलिए मैंने पूछा कि कभी ऐसा होता है क्या कि आपको चोट लग गई है बट आपको बाद में पता चला है? तो यही होता है। Okay, so I'll say it again in English. Our brain actually sends signals to our hand through electrical impulses. But because of high sugars, there is nerve damage, which is what causes us to not get these signals properly. Right? So that is why we might not know when we have any kind of hurt or any kind of we might also feel numb. So these are a few things. Okay, so Vandana ji is telling she feels pain for a while waking up. Okay, suffering from 11 years. Yeah, so we'll be talking about this now. What is another risk? एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब आपकी नर्व या आपके नसों में कोई भी दिक्कत होती है तो आपकी इंजुरीज भी अननोटिस चली जाएंगी, राइट? योर इंजुरीज में गो अननोटिस, क्योंकि अगर आपको ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा है कि भाई
मुझे दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग लाइक यहाँ से खून निकल रहा है या कुछ भी, कभी भी वी गेट अ कट और समथिंग, द फर्स्ट थिंग दैट वी गेट इज पेन, राइट? तो पेन कहाँ से आ रहा है? ये हमारी नर्व्स सिग्नल कर रही है हमारी ब्रेन को कि यहाँ पे पेन आ रहा है। बट व्हेन वी हैव डायबिटिक न्यूरोपैथी, देयर इज नो सिग्नल ऑफ पेन, देयर इज numbness in your feet, so your injuries may go unnoticed, and injuries अगर unnoticed जाएंगी तो there is an open wound and that can be easily infected by a bacteria. Okay, so this is why it matters. Next is early detection and care can prevent serious complications. अगर हमारी नर्व्स इलेक्ट्रिकल वायर्स की तरह है और एक वायर के पार्ट में रस्ट लग चुका है, तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है अभी? कि आगे की जो वायर है वो रस्ट ना हो, राइट? सो व्हाट वी वुड वांट टू डू इज कि अगर इस वेबिनार के बाद आपको लग रहा है कि बहुत सारी सिम्टम्स है आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी की, so you can go to a doctor and get it treated as early as possible. Okay, so I hope this is clear. Now let us talk about diabetic neuropathy. 1 minute. Yeah. So let us talk about diabetic neuropathy. What is diabetic neuropathy? Nerve damage caused by high blood sugars over time. So a lot of times we think कि high blood sugars are only are not going to do anything and we take it very casually. जब भी हम लोगों को हम देखते हैं कि हमारी sugars high है, तो हम उसको बहुत casually लेते हैं कि हाँ मैम कोई बात नहीं, मैं छुट्टी पे हूँ, आके देखेंगे. But high sugars can cause a serious damage, irreversible damage in our nerves. और क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में nerves are the only cell in our body जो regenerate नहीं हो सकती. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितना irreversible damage हो रहा है because of high sugars? So I'll repeat it in English again. Our nerve cells are the only cell in the body which cannot regenerate. Every cell in our body can regenerate except for the nerve cells and the brain cells. तो अगर हमारी ब्रेन में डैमेज हुआ है या नर्व सेल्स में डैमेज हुआ है, सो दिस इज एन इरिवर्सिबल डैमेज दैट इज हैपनिंग. सो इसीलिए इसको हमको बहुत ही सीरियसली और प्रिकॉशन से लेना है, एंड इसीलिए हाई शुगर्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना है. सो नमनेस और नॉर्मल जो सिम्टम्स होती है वो होती है नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग पेन. तो इसीलिए जब भी हम लोग, इफ यू टॉक टू योर कोचेस, जब भी आप अपनी कोचेस से बात करेंगे, हम पहला सवाल यही पूछते हैं, क्या आपको अपने पैरों में जलन फील हो रही है? क्या आपको कोई नमनेस फील हो रही है? बिकॉज ये एक साइन है या एक पॉसिबल रीजन है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हुई है. ओके, सो इट इज कॉमन इन मोस्टली ऑफ फीट एंड लेग्स. ये ज्यादातर पैर और आपके आपके फीट और आपके लेग्स में होता है. और उसके अलावा नम्बनेस, टिंगलिंग, बर्निंग पेन, पैरों में आपकी कोई सेंसेशन ना आना, आपको जलन होना, टिंगलिंग होना, उसके अलावा कोई मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चोट लगे, कुछ भी लगे, आपको पता नहीं चलेगा. दिस इज व्हाट यूजुअली हैपेंस विद डायबिटिक न्यूरोपैथी. ठीक है. तो वाई फुट केयर इज क्रिटिकल. तो पहले तो जब भी हम लोगों को, इफ यू कंपेयर, हमारी नॉर्मल फुट ऐसे होती है एंड द डायबिटिक फुट लुक्स लाइक दिस. सो एज यू कैन सी, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायबिटिक फुट है, यहाँ पे बहुत सारी नसें, बहुत सारी नर्व सेल्स ये खराब हो रही है. तो इसीलिए दे टर्न ब्लू. तो बहुत लोग क्या करते हैं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड. बहुत लोग जिनको डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, लॉट ऑफ पीपल दैट हैव डायबिटिक न्यूरोपैथी, दे गो एंड गेट अ मसाज. कितने लोग मसाज कराते हैं बिकॉज ऑफ द डायबिटिक न्यूरोपैथी? मुझे बोलिए चैट में. ऑल्सो वन नोटिस टू एवरी वन, अभी 30 मिनट्स के लिए आई टेक द सेशन, उसके बाद इट्स ओनली अ Q&A सेशन. तो अभी क्वेश्चंस मत डालिए, पुट इट आफ्टरवर्ड्स. यस, मसाज कराते हैं, नो मसाज, गुड. सो मसाज कभी भी नहीं कराना चाहिए. जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है तो आपकी जो छोटी छोटी नसें होती है, आप उसको और डैमेज कर रहे हैं मसाज करके. ठीक है.
उसके ऊपर से अगर आप एक लोकल मसाज करने वाले के पास जाओगे तो वो एकदम प्रेशर डाल के आपकी मसाज करता है, विच कॉजेस फर्दर nerve damage. ठीक है, so I'm going to repeat this in English. Never go for a massage when you have neuropathy, because there are small nerve endings or small nerves that can get damaged when you get a massage. So yes, I take it daily, do not do it daily. Okay, so massage nahi karana hai hame, because massage करने से इट इज गोइंग टू डैमेज आर नर्व्स फर्दर. ठीक है, तो फुट केयर क्यों क्रिटिकल है? नाउ वी अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ वी हैव एन आइडिया कि डायबिटिक न्यूरोपैथी से क्या होता है. ठीक है, हम लोग को पता चल गया कि बर्निंग सेंसेशन होता है, नमनेस होता है, इंजुरीज के बारे में पता नहीं चलता है. तो ये सब इनफ रीजंस है. दीज आर इनफ रीजंस फॉर अस टू टेक केयर ऑफ आवर फुट. हम अपने फुट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, राइट? बट फुट केयर इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल इन डायबिटिक न्यूरोपैथी. ठीक है, तो इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है. नमनेस होता है, स्लो हीलिंग के वजह से इन्फेक्शन फास्ट स्प्रेड होती है. उसके अलावा अल्सर, गैंग्रीन, एम्प्यूटेशंस. एम्प्यूटेशन मतलब आपकी पैर तक काट सकते हैं अगर ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया. आप खुद ही सोचिए, अगर आपको न्यूरोपैथी है, आप रोड पे चल रहे हैं, आपके पैर के अंदर कांच चला गया है, आपको पेन की फीलिंग होगी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि आपको दर्द हो रहा है, आपको पता भी नहीं आपके पैर के अंदर कांच चला गया है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट जो गॉड ने दी है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स, मतलब हमारी नर्व सेल्स का सबसे पहला क्वालिटी जो है हमें हर चीज से बचाना. अगर एक छोटा सा कंकड़ भी हमारे पैर में लगता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट है पैर को उधर से हटा लेना. बट हमारा ये जो गॉड गिफ्ट है यही हमसे छिन चुका है. तो अगर आपकी पैर में एक कांच भी चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा. इसीलिए फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अगर आपको न्यूरोपैथी हो गया है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, बट आप अपने एंड से थोड़ा केयर कर सकते हैं जिससे आप अपने पैरों को ना खो दे. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन इस हद तक हो जाता है कि पैर को काटना पड़ता है. Sometimes what happens is, because injuries go unnoticed, even a glass can get inside your leg and you might not know, and this can cause amputations as well. Sometimes doctor has to remove a part of your leg to prevent further infections. So this is why foot care becomes very critical. Now, can anybody tell me, have what do you think would be a part of the foot care? Like आज तक क्या देखा होगा डायबिटिक फुट केयर में आपने? वंदना जी एंड टू एवरीबडी, मैं क्वेश्चंस लूंगी. जस्ट वेट अंटिल 10:30, उसके बाद आई विल ओनली टेक क्वेश्चंस. वेयरिंग कंफर्टेबल शूज, राइट? ओके. Wear Z close slippers, using proper footwear. Yeah, right. एज अ पार्ट ऑफ फुट केयर बहुत सारी चीजें आती है, बट फुट केयर से बिफोर वी गेट इनटू फुट केयर, पहले हीलिंग नर्व्स के बारे में बात करते हैं. तो हीलिंग नर्व्स, आपकी नर्व्स को हील करने के लिए क्या क्या करना है? पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू टू हील आवर नर्व्स वुड बी ब्लड शुगर कंट्रोल. ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे करना है? एक चीज मैंने, एक पैटर्न देखी है मैंने बहुत लोगों में, जब प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं एंथुजियाज्म 100 पे होता है, एंड दे विल डू एनीथिंग, सब कुछ कर लेंगे डायबिटीज ठीक करना है. 2 महीने बाद कोई वेकेशन आएगा, सर आप इस वेकेशन पे अपनी ग्लूकोमीटर लेके जाइए, अगर हाई शुगर्स होंगी तो आई विल बी ऑन अलर्ट. ये आपकी हेल्थ कोच बोलती है. आप बोलते क्या मैम, वेकेशन पे कौन शुगर चेक करता है? बट यही यही सब, दीज आर द टाइम्स जब आपकी शुगर सबसे ज्यादा बढ़ती है. तो कभी भी कहीं पे भी हम जाते हैं, वेर एवर वी गो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कैरी अ ग्लूकोमीटर, बिकॉज हाई शुगर्स, we might be taking it lightly, but day by day it is damaging each and every cell and organ in our body.
ठीक है, तो हम लोगों की शुगर्स को हमको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि डे बाय डे हमारी आंख, हमारी हर सेल, हमारी हर ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है. सो इसीलिए ब्लड शुगर मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बोल रही हूँ कि हाई शुगर होना बिल्कुल सही बात नहीं है. हम लोगों को इस पे कंट्रोल लाने की सख्त कोशिश करनी चाहिए. उसके अलावा बैलेंस डाइट, जो आपकी कोचेस आपका टेक केयर कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी डाइट से कुछ अफेक्ट नहीं आ रहा है, सो देन यू कैन कंप्लेन इट टू योर कोच एंड वो जरूर बदलेंगे. उसके अलावा रेगुलर मूवमेंट, रोज आपको कोई ना कोई एक्सरसाइज करना है. अब आप सोचोगे हाई शुगर का मूवमेंट से क्या मतलब, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी स्टोर्ड शुगर को यूज करती है. हमारी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट एट, राइट, राइट आफ्टर आई एट अगर मैं एक वॉक के लिए जाऊं, तो मेरी बॉडी जितना भी खाने से शुगर आएगा वो सब यूटिलाइज कर लेगी, एंड मेरी शुगर्स हाई होंगी ही नहीं. राइट. सो इफ आई गो फॉर अ वॉक राइट आफ्टर अ मील, my sugars will not go up because all the sugars will be used up right after I have the meal. Right. So this is why movement is very important. क्विट स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल से आपकी नर्व डैमेज और भी बदतर होती है. ठीक है, इफ यू आर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग इट वर्सन्स नर्व डैमेज. ठीक है, सो अगर आपको अपनी न्यूरोपैथी रिवर्स करनी है तो फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ एवरीथिंग वुड बी टू क्विट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग. ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल सपोर्ट. अगर पेन काफी ज्यादा है, इफ द पेन इज एक्सट्रीम, देन यू विल हैव टू गो फॉर पेन रिलीफ मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी. राइट. सो अगर आपकी पेन काफी ज्यादा है तो फिजियोथेरेपी कराइए, नहीं तो पेन रिलीफ मेडिकेशन लीजिए. मसाज मत कराइए. आपको बहुत मन करेगा कि मैं मसाज कर लूं, बट आप अपनी नसों को डैमेज कर रहे हैं. और मैंने बोला है कि हमारी बॉडी में इकलौते सेल्स, नर्व सेल्स और ब्रेन सेल्स कभी रीजेनरेट नहीं होते. बाकी सारे सेल्स रीजेनरेट हो जाते हैं, बट नर्व सेल्स एक बार डैमेज हुए तो वो इरिवर्सिबल है. इसीलिए अगर किसी को नमनेस होता है तो आप एक हिसाब से अपनी एक पार्ट ऑफ द पैर को फील ही नहीं कर पाएंगे, आपको चलने में भी दिक्कत आने लग जाएगी. तो डेली फुट केयर रूटीन क्या रहेगा, व्हाट विल बी द डेली फुट केयर रूटीन? Yeah, so you guys have written specially designed footwear. Very, very correct. Dr. Soul slippers. So कितने लोगों ने डॉक्टर सोल स्लीपर्स पहने हैं? डायबिटिक, डायबिटिक जो शूज या स्लीपर्स आते हैं. यस. सो रिलीफ मिलता है? डू यू गाइस थिंक? नॉट येट. ओके. ओके. सो देर आर डायबिटिक न्यूरोपैथी सोल्स. सोल्स भी आते हैं, आपकी नॉर्मल शूज भी आती है डायबिटिक वाली, जो आपके पैरों को बहुत सपोर्ट देती है, एंड दे आर हाईली कुशन, नॉट मच. ओके. सो नाउ डेली फुट केयर रूटीन. नाउ आई वॉन्ट everyone to follow this regularly. जिसको भी symptoms हो रहे हैं, मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस रूटीन को रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर फुट केयर नहीं लिया ड्यूरिंग when you have neuropathy, तो it can go to an extent of an amputation. राइट. एक पैर आपका जा सकता है. मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको अवेयर कर रही हूँ कि ये प्रैक्टिसेस कितने इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आप नहा रहे हैं तब भी आप ये सब कर सकते हैं. तो पहला चीज है चेक डेली. ठीक है, डेली उठते टाइम या सोने से पहले ट्राई टू चेक और लुक फॉर कट्स, ब्लिस्टर्स, रेडनेस एंड स्वेलिंग. एक तो हमें पता है कि हमारी नसें डैमेज हो चुकी है. वी नो दैट आवर नर्व्स हैव बीन डैमेज. So we always need to keep a strong watch on our foot. राइट. हम लोगों को प्रॉपरली देखना है कि कोई कट तो नहीं आ गया है, कोई ब्लिस्टर तो नहीं आ गया है, कोई रेडनेस नहीं आ गई है, कोई स्वेलिंग नहीं आएगी. ये हम सबको हमेशा चेक करते रहना है. उसके अलावा वॉश एंड ड्राई. तो रोज आपको क्या करना है, अपनी फुट को वार्म वाटर से, थोड़ा कोई भी एक माइल्ड सोप से
वॉश करना है और फिर उसको पैट ड्राई करना है, स्पेशली आपके टोज के बीच में। किसी ने ऑब्जर्व किया आपके टोज के बीच में अगर पानी रह जाता है तो आपको काइंड ऑफ इचिंग या मतलब वहां पे रेडनेस और पेन होने लग जाता है? ओके, हाँ, सो ऑलवेज, यस यस, ओके। सो कभी भी अगर आप अपनी पैर को वॉश कर रहे हैं, ऑलवेज लुक बिटवीन द टोज एंड वॉश एंड ड्राई देम फ्रॉम देयर ऑल्सो। उसके अलावा मॉइस्चराइज, ओके। कोई भी लोशन ले सकते हैं आप, यू कैन टेक एनी लोशन एंड मॉइस्चराइज, बट अवॉइड बिटवीन टोज टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ। हमारी टोज के बीच में जो एरिया होती है उसमें जो रेडनेस होती है या वेटनेस होती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, हम जब भी मॉइस्चराइज कर रहे हैं ट्राई कीजिए अपनी हील एरिया या अपनी फुट एरिया में लगाए, बट टोज के पास मत लगाए। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड द टो एरिया बिकॉज it will prevent fungal growth. Next is wear soft well fitted footwear. कभी भी barefoot walking नहीं करना है, घर पे भी नहीं। Okay, prevent barefoot walking even at your house. Try to wear a soft well fitted footwear because घर पे भी there is a high chance that you might get a hurt, you might sting a nail, you might step on glass, कुछ भी हो सकता है घर पे, but you it might go unnoticed. So that is why it is very important even घर पे आप soft well fitted footwear पहनो, ठीक है। उसके अलावा ट्रिम योर नेल्स केयरफुली, ठीक है, अपनी नेल्स को केयरफुली ट्रिम करो, क्योंकि नेल्स ट्रिम करते टाइम भी आपकी कट्स आ सकती है एंड इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर कटिंग योर नेल्स टेक एक्स्ट्रा अटेंशन एंड ट्राई टू cut it properly and try to file your toenails straight, ठीक है। तो these are some of the things. Next is footwear and socks tips. ओके, नेक्स्ट इज फुटवेयर एंड सॉक्स टिप्स। जब भी आप शूज पहनो, वेन एवर यू वेयरिंग शूज, गो फॉर वाइड toe box, cushion sole, no tight straps. So these days we actually have, if you must have noticed, पहले जो shoes आते थे they were not very comfortable because the जो toe fit होता है, टो फिट बहुत ही, अगर आप किसी भी शू को देखेंगे द टो फिट इज वेरी स्मॉल, लाइक इट डजंट फिट ऑल 5 ऑफ योर टोज। तो आजकल जो शूज आने लग गए दे आर मच वाइडर, सो गो फॉर द वाइडर शूज विच यू आर मच मोर कंफर्टेबल इन। कुशन रहने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बी कुशन, और नो टाइट स्ट्रैप्स, कोई टाइट स्ट्रैप्स नहीं रहनी चाहिए। ओके, सो दिस इज सम टिप। नेक्स्ट, सॉक्स। इफ यू आर वेयरिंग सॉक्स, कॉटन, सीमलेस, मॉइस्चर विकिंग। कभी भी सॉक्स ले रहे हैं तो कॉटन वाली लीजिए, सीमलेस लीजिए एंड मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने वाली, ठीक है। तो ये सॉक्स एंड शूज के बारे में। अवॉइड फ्लिप फ्लॉप्स, हाई हील्स, टाइट शूज। फ्लिप फ्लॉप्स मतलब आपका रेगुलर चप्पल, हाई हील्स, टाइट शूज अवॉइड करनी है, ठीक है। बाय शूज इन द इवनिंग व्हेन द फीट आर स्लाइटली स्वोलन फॉर द बेस्ट फीट। कभी भी शूज लेने जाओ तो इवनिंग टाइम पे जाओ, क्योंकि इवनिंग टाइम पे यूजुअली हमारी फीट स्लाइटली स्वोलन रहती है, तो उससे हमारी बेस्ट फिट हमको मिल जाएगी। सो नाउ अभी मैं थोड़े वार्निंग साइंस के बारे में बताना चाहूंगी, जो अगर आपको हो रहा है तो आपको एक डॉक्टर को इमीडिएटली देखना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पैर में कोई ओपन सोर्स या अल्सर है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इफ यू हैव एनी ओपन सोर और अल्सर्स इन योर फीट, यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। पर्सिस्टेंट स्वेलिंग और रेडनेस, बहुत दिनों से स्वेलिंग है आपके पैर में या रेडनेस है, मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की स्वेलिंग। ओके, पिक्चर, हाँ मैं बाद में दिखाऊंगी, बट अगर आपकी पैरों में परसिस्टेंट स्वेलिंग है या रेडनेस है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा पस या फाउल स्मेल, आपके पैर से पस निकल रहा है या कोई भी फाउल स्मेल निकल रहा है, अजीब स्मेल निकल रहा है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सडन पेन और नमनेस, आपके पैर में सडनली पेन आ रहा है और नम्ब फील हो रहा है, मतलब पैर सुन हो रहे हैं, तो यू शुड गो टू अ डॉक्टर।
इनग्रोन नेल्स और फंगल इन्फेक्शन, अगर आपको पैर में कोई भी फंगल इन्फेक्शन दिख रहा है या इनग्रोन नेल्स दिख रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये भी थोड़े वार्निंग साइंस है, पिन्स और नीडल्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके पैर में पिन और नीडल चुभा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है कि पैर में जलन हो रही है, गो टू द डॉक्टर। टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसा लग रहा है आपके पैर पे चींटियां रेंग रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेनफुल कोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है आपका पैर या बहुत ज्यादा गर्म है या इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, सो दीज आर द थिंग्स व्हेन यू शुड गो टू अ डॉक्टर। अभी प्रोफेशनल सपोर्ट, सो एक तो है पोडियाट्रिस्ट। सो आप पोडियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं एटलीस्ट वंस अ ईयर। अगर आपको ये सिम्टम्स सालों से हो रहे हैं तो आपको पोडियाट्रिस्ट के पास जाना ही जाना चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर। फुट केयर नर्स के पास भी जा सकते हैं, वो आपकी नेल ट्रिमिंग और कैलस रिमूवल प्रॉपरली कर देगी। अगर आपको आपकी जो वुंड्स है वो प्रॉपरली हील नहीं हो रही है तो स्पेशलिस्ट रेफरल भी करेंगे डॉक्टर्स, लाइक आपको डर्मैट के पास भेजेंगे, मे बी फंगल इन्फेक्शन हुआ तो। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम डूज एंड डोंट्स। मैं थोड़े डूज और डोंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। सो उससे पहले कैन एनीवन टेल मी, आपने अपने पैर में ऐसे नर्व्स देखे हैं क्या? किसी को ऐसा लगता है कि आपके पैरों में ऐसे नर्व्स दिखते हैं? नहीं, यस, यस, ओके, okay, I'll talk in English also, don't worry. Okay, so some do's are: check your feet daily, keep your blood sugar in control, wear proper shoes, keep your feet clean and dry. Okay, थोड़े डूज क्या है? अपनी फीट को डेली चेक करें, शुगर को मेंटेन में रखें, शूज प्रॉपर पहने और फीट को क्लीन एंड ड्राई रखें। डोंट्स क्या है? बेयरफुट कभी ना चले, पानी हॉट वाटर कभी भी अपने फीट पे नहीं यूज करना है, माइनर वुंड्स को इग्नोर ना करें, सेल्फ ट्रीट डीप क्रॉन्स और कैलसिस। कभी भी आपको पैर में कोई कॉर्न आए या कैलस आए आपको सेल्फ ट्रीट नहीं करना है। ओके, सो डू नॉट वॉक बेयरफुट, यूज हॉट वाटर बॉटल्स ऑन फीट, नेवर यूज हॉट वाटर बॉटल्स ऑन फीट, इग्नोर माइनर वुंड्स or self treat deep corns and calluses. Now, some of the key takeaways would be neuropathy can improve with good control and care। अगर हम अपने न्यूरोपैथी को प्रॉपर केयर और कंट्रोल के साथ लेंगे तो इट कैन बी इम्प्रूव्ड। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। A lot of you have told me that you're not getting any of these symptoms. I'm really happy for you, but आपको ये सब चीजें फिर भी ट्राई करनी है करने की, राइट? यू नेवर नो, right? You have to keep your sugars in control, you have to keep checking your feet for any kind of minor or major injuries and seek help early। कभी भी आपको छोटा दर्द भी हो रहा है तो गो टू अ पोडियाट्रिस्ट और गो टू अ डॉक्टर। ओके, एक तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड सीक हेल्प अर्ली, दीज आर टू key takeaways। If you get early care, as I said, nerve is a cell that does not regenerate। if we seek help early, a lot of the damage can be prevented। ठीक है? So that is it for this session। Now I will be taking questions from everybody। So कोई भी questions, you can start writing it up now। Yes, you can start writing your questions। We can stop sharing the screen now. Yeah. So the one thing which is very important from this session is that awareness, right? The more you are aware, the more you take care of your body, the more you notice and be aware of these symptoms and signs, the better will be the cure, right? You can prevent it before it gets aggravated, right? We do not even understand the symptoms comes much later than when you just actually start getting the problem. So please
emphasize on it. And I suggest someone who is not facing any symptoms or signs as of now, yearly once checkup is very important to the podiatrist. This is something being suggested by Dr. Chavi. She always suggests and emphasize that at least yearly once go and meet the podiatrist, get your eyesight checkup, because we do not want any one of you to end up getting any complications, right? So we can take up the question, Shruti. So first is, why should you not use hot water on feet? So like I said कि कभी जब हमको when we have neuropathy, we might not realize we have no sensation in our feet and we are using hot water on our feet, right? We might not realize, but the water might be too hot for our body to take, right? We might not realize, and the water temperature could be 100 degrees and we can face severe burns. This has happened with people. So hot water is prevented because you don't know, you don't have any sensation in your feet, and if you use hot water in your feet, you might face severe burns, and there can be infections also, because burn is a site where your whole skin or the internal thing is, you're basically exposing yourself to a lot of bacteria. So that is why try to avoid hot water. Now, can one feel numbness immediately after your heavy meals? Definitely. If your sugars are high, you will feel numbness sometimes. Not with everybody, but for some people, if they have it for a long time, you might feel numbness even after a heavy meal. Feeling numbness in fingers. So, tingling numbness in night. Only during night? Can we use any oil beneath the foot rather than a moisturizer? Uh, I think moisturizer would be better. Oil just forms a layer on your skin, right? ये आपको moisturization नहीं देता है. Moisturizer is usually a blend of, it's a blend of an oil and a water. So it even hydrates your skin. So that is better. Some more pointers on shoes, please. So, a few things about shoes that I can tell you is that nowadays diabetic slippers or diabetic shoes are very easily available on Amazon. Also, you can get the diabetic soles. If you want to stick to the same shoes, there are diabetic soles that are available, which are really cushioned and they provide good support. Now, if you want a proper slipper or anything, there is many products available on Amazon. If you guys want us to list a product, maybe after this session we can share some of the products. Ma'am, is arm shoulder pain related to diabetic neuropathy? Mostly no. If it is just a shoulder pain or a muscle pain, can you be more specific if it's a muscle pain, or if it is a shoulder joint pain? Like, if you be more specific, I can answer. Can you please share me the slippers to purchase? Yes, I will. Um, if I'll do it after I take up the rest of the question. If sugar levels are in control, shall we walk with barefoot? Yes, you can. If you don't have any kind of tingling sensation, you don't have any burning or any of the symptoms that I've just talked about, we can you can walk barefoot, but preferably do not walk barefoot. Okay. Why the nerve cell cannot regenerate? नाउ दिस इज हाउ आवर बायोलॉजी इज. हमारी बायोलॉजी ही ऐसी है कि बाकी सारी सेल्स रीजनरेट होती है, उनका सेल साइकिल होता है, बट नर्व सेल्स नहीं रीजनरेट होती है. तो इसीलिए अगर आप ये थोड़ी कंडीशंस देखेंगे जहां पे इफ वन पर्सन गेट्स पैरालिसिस, तो वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है, कभी ठीक नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज हाउ आवर नर्व सेल्स आर. मैम आई हैव. ओके. Your sugars are getting worse because you can't walk. So, ma'am, Divya, ma'am, can you tell me when was the last time you saw a podiatrist? So, even if you cannot walk, you can definitely do soleus push ups. How many of you know what soleus push ups is?
Now we are running with the Soleus push-up challenge, Shruti. So I think everyone should be Yeah, aware of it, and it's very helpful in reducing the spikes. So those who have not attended yet or joined the challenge, please follow it. We have shared the link and all the details in the chat. Also, stay connected to the premium group. But yeah. yes, So that's very if you important. cannot walk, like Neha is saying, this is such a nice. So there is, you can just sit after a meal. You can try to do the soleus push up. It is actually just as effective as walking after your meal. So you don't have to worry about that. Please explain soleus push-ups. For sure, I'll do that. I will share a. I'll let me just share a video. I'll share my screen. So I'll show you what soleus push-ups are. So you can start with the challenge that Neha is talking about also. So let me just share a YouTube short about soleus push-ups. Yeah. Little effort. All right. So the exercise is soleus push-ups, which is when seated, lift your heels. That's it. It's super simple. Just lift your heels. Right? Anytime that you're sitting down, doctor's office, in a meeting, working at your desk, traveling, all these kind of things. We lead a sedentary lifestyle. You end up seated a lot. Lift the heels. There you go. Now, the benefits for this, tremendous benefits. The study out of the University of Houston, published in iScience recently, tells us that this simple exercise, this one right here, helps to boost your metabolism and regulate your blood glucose levels. Okay, so I hope everybody understood. All you have to do is, like raise your feet, and this will be really effective. Agar aap chal nahi pa rahe, if you are unable to walk, try to do soleus push-ups. There's also, we have chair surya namaskar. We have so many exercises that you can do in a seated position. So these days we have the access to YouTube, even on the Sugarfit app. If you join the yoga sessions, they make you do chair yogasanas also, so you can join that and do that. Next question is, मैम थकान की वजह से टहले का मन नहीं करता. सर, बहुत चीज़ों का मन नहीं करता, मुझे तो कभी काम करने का मन नहीं करता, बट हम करते हैं, राइट? तो अ, थोड़ी चीज़ें नहीं करने से नहीं छोड़ देनी चाहिए। वी हैव टू स्टिल डू इट, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है जो हमको करनी है अपने हेल्थ के लिए। क्या आप चाहते हैं कि अभी वॉकिंग ना करके या अपनी शुगर्स को ना कंट्रोल करके बाद में जाके आपको इस चीज की वजह से काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े इन अ डॉक्टर्स ऑफिस या हॉस्पिटल में? उससे बेटर यही रहेगा कि जो मन को मार के थोड़ी देर वॉकिंग के लिए चले जाया करो, ठीक है? मैम, आई एम फीलिंग लोकलाइज्ड बर्निंग सेंसेशन सिंस 2 months. Sir, you should definitely go see a doctor. If you're feeling burning sensation, this is for everybody. If you're feeling burning sensation, numbness, or anything as such, and it is something that is affecting your daily life, you should definitely visit a doctor or a podiatrist for sure. Okay. Due to this, you do not sleep at night. This is so sad to hear, but definitely you should see a doctor, because the pain can be extreme. Best soap or antifungal soap for foot. So if you have fungal infection, then there is medical grade soaps that are available that the doctors will provide you. So if I suggested fungal soap right now, antifungal soap right now, there is no use, but the dermatologists usually prescribe an antifungal soap that you can get. Sometimes pain starts in my leg. You should take it seriously and try to manage your sugars if it is not very often. I did say why we should avoid hot waters. Itching feeling below knee level. Okay, itching feeling, how long has this been? I think, Ganesh sir, I think you should see a podiatrist, because you're saying yes to each and every symptom that I've listed. There is definitely something that needs to be taken care of. I usually have heaviness in legs, especially in the evening. What should I do?
heaviness, what kind of heaviness do you feel? Like your legs are swollen? If you feel like your legs are swollen, then what you should do is, if you feel like your legs are swollen, then going for a small walk. If walk is, because a lot of time what happens is, because we are sitting all the time, a lot of there is a lot of swelling in our feet. Although it can be painful, go for a small walk, it really helps. I Apart get. from that, Shruti, one more thing one can do is like raising your legs up. It also increases the blood circulation, and that helps in reducing the pain and the tingling sensation, or even any discomfort. So make sure that you are raising your legs after some time, and please meet the podiatrist. Do not ignore that. Do not try to treat it on your own. It's just the precaution that, or the temporary solution what we are providing, but actually you need to meet the podiatrist and take the right care of it. Yeah, right. Rightly said, Neha.